عباس بنت نواب علی عابد حسین ابن علی جہاں معصومین کے سب برائے خوشنودی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ برائے خوشنودی امام زمانہ ابن برائے سلامتی امام زمانہ ایک اور باواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا و نبینا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المبین وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد قال رب صدري يسر لي واحلل عقدة من لساني قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين والملائكة وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء حين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. اللهم صل على محمد وآل محمد. جناب سیدہ مادام مولانا حسین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی بڑی طویل آیت کی تلاوت کی ہے جو 177ویں آیت ہے اور مستقل اسی آیت کو عنوان سخن قرار دیا ہے. اس آیت میں اعلان ہو رہا ہے قبل اس کے کہ میں آیت کی وضاحت کروں. ہر مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے لیکن اس کی وضاحت ہمیشہ زندہ کرداروں سے ہوتی ہے اور اس مجلس کا آغاز میں نے زیارت عاشورہ سے کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ کچھ نہ کچھ وبائیں آئی ہیں جو 40 دن یا 70 دن رہی ہیں، لیکن یہ ایک ایسی وبا ہے کہ کم سے کم 7 مہینے ہو گئے جو ہم اس سے پریشان ہیں. میں دعا کروں گی کہ جتنی بھی مومنات یہاں پر آئی ہیں وہ اپنی دلی حاجات کو لے کر جائیں. عبد الکریم حائری جو حوضہ
لاشیں نکلتے تھے۔ اس وقت انہوں نے بتایا تھا کہ زیارت عاشورہ پڑھیں اور اپنے زمانے کے پروٹیکٹر امام زمانہ کی والدہ جناب نرجس خاتون کے نام اس کو ہدیہ کریں اور دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں کامیاب ہوں اور آپ اس در سے کامیاب لوٹے گی، اور انشاءاللہ یہ وائرس جو ہمارے درمیان لوگ اس سے بہت ڈرے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہمارا تو کہنا ہے کہ ہر مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے، لیکن اس کی وضاحت زندہ کرداروں سے ہوتی ہے۔ اگر قرآن نے لفظی اسٹیٹمنٹ دے دیا ہوتا تو شاید ہم اس بات کو اتنا واضح نہیں کر پاتے، لیکن سب سے زیادہ اہم قربانی امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ جتنی بھی آیات آپ کلام پاک کی دیکھیں، آیت تطہیر، آیت معدت، سورہ کہف، سورہ احقاف، جتنے بھی سورے ہیں وہ زندہ کردار ہے آقا امام حسین علیہ السلام کی وضاحت کرتے ہیں۔ اور اس در سے کیا ڈرنا، یہ تو وہ در ہے آقا حسین کا کہ ہم اور آپ تو بہت گنہگار ہیں، فرشتے بھی اس در کے محتاج صفات ہیں۔ لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے، میں مجلسوں میں جاتی ہوں، خدا کی قسم بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ شاہزادی فاطمہ زہرا جو سسکیاں لے لے کر جاتی ہیں، ادھر آپ نے فرش عزا بچھایا، یہاں پر یہ ضروری نہیں کہ 100 آدمی ہو، 200 آدمی، اگر 2 آدمی بھی ہیں اور اعلان ہو گیا ہے تو شاہزادی فاطمہ زہرا رو رو کر اپنے عزاداروں کے لیے دعائیں کرتی۔ کیسے ممکن ہے وہ حسین جو شفا بانٹ رہے؟ بس یاد رکھیے کہ آپ کا راستہ، دل کا راستہ اللہ سے نہ چھوڑے، کیونکہ جتنا جتنا آپ میں خوف خدا پیدا ہوگا، حب حسین بڑھتا چلا جائے گا، حب حسین بڑھتا چلا جائے گا، تو آپ ہر منزل پر کامیاب۔ اور یاد رکھیں، دنیا کی خوشنودی مت حاصل کریں، کیونکہ یہ دنیا وہ ہے کہ جس حسین کے لیے لباس عید کا جنت سے آیا تھا، اس حسین کو دنیا والوں نے کفن نہیں دیا۔ لہٰذا آپ دنیا کی پرواہ مت کریں، کیونکہ اللہ میں اور اہل بیت میں ایک ایسا معاہدہ ہے کہ جس سے اللہ خوش ہے اس سے اہل بیت خوش ہیں، جس سے اہل بیت خوش ہیں اس سے اللہ خوش ہے۔ ممکن نہیں کہ آپ اللہ کی خوشنودی کا خیال کریں، کیونکہ معصوم کی حدیث یہ ہے کہ دیکھو اپنی عبادت کے بنا پر محبت اہل بیت ترک مت کرنا، اور اہل بیت کی محبت کے بنا پر عبادت ترک مت کرنا۔ دنیا کو خوش کرنا اپنے اخلاق کے ذریعے اور اللہ کو خوش کرنا اپنی عبادت کے ذریعے۔ لہذا سب سے بڑی عظیم قربانی امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ بس مختصر جس آیت کا میں نے آغاز کیا ہے، جس کو عنوان سخن قرار دیا ہے، جس سے مسلسل میں گفتگو کر رہی ہوں، صرف اور صرف یہ کہنا ہے کہ جو بھی کریے وہ اللہ کی خوشنودی میں کریے، کیونکہ اللہ نے کعبہ بنایا، قبلہ بنایا، جمادات بنائے، نباتات بنائے، زمین بنائی، آسمان بنایا، جو بھی بنایا ہے، لیکن آپ کے اپنا گھر اس نے آپ کے دل کو بنایا۔ تو بس دل سے اللہ کا راستہ نہ چھوٹے، جتنا جتنا آپ اللہ کی خوشنودی کرتے جائیے گا، اللہ آپ کو نوازتا چلا۔ ایک صلوات تو اس آیت میں نیکی کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ نیکی کسے کہتے ہیں۔ بڑی مشکل بات ہے کہ نیکی کی تعریف کو سمجھانا، اور اس دور میں سمجھانا کہ جس وقت رسول نے کہا تھا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ جب لوگ نیکی کی تلقین نہیں کریں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے۔ لوگوں نے گھبرا کے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا وقت آئے گا؟ کا ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ لوگ نیکی کی ڈیفینیشن ہی بدل دیں گے، برائی کو اچھائی کہیں گے اور اچھائی کو برائی کہیں گے۔ لیکن میں ہمیشہ بہت پازیٹیو سوچتی ہوں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ نیکی کا زمانہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی نیکی کا زمانہ ہے۔ جو دنیا والوں سے ریٹرن چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں نیکی کا زمانہ نہیں ہے، جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں ان کے لیے وہ بھی زمانہ نیکی کا تھا اور آج بھی نیکی کا زمانہ ہے۔ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ صلوات پڑھتے ہیں۔
तो इस आयत में ऐलान है कि शार्ट करके कहना चाहती हूँ क्योंकि दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, काफी ताख़ीर होती है। नेकी हरगिज हरगिज नहीं है कि तुम अपने चेहरों को मशरिक या मगरिब की तरफ झुका दो, यानी सिर्फ नमाज अदा करो, सिर्फ वाजिबात अदा करो। निगाह कुरान देख रही थी कि दुनिया दो धर्मों में तकसीम हो जाएगी, एक मशरिक कहलाएगा, एक मगरिब कहलाएगा। अल्लाह कह रहा है नेकी ये नहीं कि तुम अपने चेहरों को मशरिक या मगरिब की तरफ झुका दो, नेकी ये है कि अल्लाह पर ईमान, बुनियादी ईमान अल्लाह पर ईमान। इसकी मैं वजाहत और मजलिस में कर चुकी हूँ कि अल्लाह के मायने क्या हैं। तो बुनियादी ईमान ये है कि अल्लाह पर ईमान, उसकी किताब पर ईमान, उसके मलाइका पर ईमान, उसके नबियों पर ईमान, अल्लाह की खुदाई एक एक लफ्ज, खुदा की कसम, इस्लाम के कल्ब में इतनी वसत है कि किसी दुनिया में इतनी वसत नहीं। एक एक लफ्ज अल्लाह की खुदाई नबूवत पर टिकी। अगर नबूवत पर शक हो जाए तो खुदा न करे अल्लाह जो है वो उस वक्त उस पर मशकूक हो जाएगी उसकी खुदाई। एक एक लफ्ज टिका हुआ है। लिहाजा अल्लाह पर ईमान, बुनियादी ईमान ये अल्लाह पर ईमान, उसकी किताब पर ईमान, उसके फरिश्तों पर ईमान, उसके नबियों पर ईमान, उसकी किताब पर ईमान। और कुछ चीजों को मानना है, कुछ चीजों पर अमल करना है। मानना किसे है? अल्लाह को मानना है, ये है ईमान। और अमल किसे करना? वातल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा, अल्लाह की मोहब्बत में खर्च करो। क्या खर्च करो? ये नहीं वजाहत है कि दौलत खर्च करो जो तुम्हें अल्लाह ने दिया है, वो अल्लाह की मोहब्बत में खर्च करो। किस पर खर्च करो? ज़विल कुर्बा, अपने करीबी और गरीब अजीजदारों पर। यहाँ तक कि है हम ये समझते हैं कि सदका अगर खुदा ना खास्ता अपना कोई भाई गरीब है उसको दे दिया तो हमारा अजाब उस पर चला जाएगा, हमारी बीमारी नहीं, दुगने अज्र का सवाब है। ज़विल कुर्बा, अपने करीबी और गरीब अजीजदारों पर खर्च करो। वल मसाकीन, तो तुम्हारे आगे हाथ फैला के मांग ले। हमें उनसे सवाल करने का हक नहीं है कि ये छोटे हैं, बड़े हैं, गरीब हैं या अमीर हैं। कुरान कह रहा है वसाइलीन, अगर तुम्हारे आगे कोई हाथ फैला के मांग ले तो उसके सवाल को रद्द न करो। जब मौला से पूछा था कि आमिरुल मोमिनीन हम कैसे पहचाने कि कौन हकदार है कौन नाहक, कहा तुम उसको भी दो जो हकदार है, जो नहीं हकदार है उसको भी दो, फिर अल्लाह तुम्हें वो देगा जो तुम्हारा हक है, और जो जहाँ से नहीं भी वो भी तुम्हें। दुनिया यही समझती है मेहनत और मशक्कत से रिस्क कमाते हैं, लेकिन मासूम का इरशाद है रिस्क तुम्हें सखावत से मिलता है। वसाइलीन व फिर रिकाब व अकामत सलात व अदल ज़कात, जो तुम्हारे आगे हाथ फैला के मांग लें, जो सफर में गरीब हो जाए, गुलाम को आजाद कराना, लेकिन जो भी करना वो अल्लाह की मोहब्बत में करना। खबरदार खबरदार दुनिया की खुशनुदी में होता। नमाजों को कायम करना, व अकामत सलात व अदल ज़कात, दामने वक्त में गुंजाइश होती तो अच्छी वजाहत करती कि नमाज के बाद ज़कात का तज़किरा है, और ज़कात में ये नहीं कहा, एक एक लफ्ज कलाम पाक का ऐसा है। इसलिए रसूल का इरशाद है कि अपने हर जिक्र को इबादत खुदा से और कुरान पर मुश्तमिल रखना, इसलिए कि इसके गुनाहों का कफ़ारा है और ये तुम्हारा हर वक्त का सर। लिहाजा अपनी मजलिस को जीनत दो, जिक्र अहले बैत से, दोनों एक हैं, कुरान और अहले बैत। तो नमाज के बाद फौरन ज़कात का तज़किरा आया है। ज़कात के माने ये नहीं कि ज़कात निकालो का, ज़कात दो। देखिए ज़कात देने में और निकालने में फर्क। ज़कात दो यानी गरीब को रोका है कि वो तुम्हारे दर पे आएगा तो एहसास कमतरी होगी, और अमीर को इजाजत दी कि तुम उसके दर पे जाओ ताकि तुम्हारे एहसास बरतरी का तुम्हें एहसास बरतरी ना। एक एक लफ्ज की ऐसी वजाहत है कि मैं कहती हूँ कि हर इंसान ये चाहता है, अंधा चाहता है कि हम कुरान की तिलावत करें, बहरा चाहता है कि हम सुने, लेकिन हम ना अंधे ना गूंगे ना बहरे, लेकिन उसके बाद जदीद हालात ने हमको ऐसा बना दिया है कि हम कुरान से बहुत जितना जितना कुरान के करीब आते चले जाइएगा, आप में नेकियां और अच्छाइयां और नेकियों का मफ़हूम और नेकियों की तारीफ आपको समझ में आती चली। वह अकामत सलात बड़ी तवील आयत है, और आयत के फौरन नुज़ूल के बाद रसूल ने कहा था कि जिसने इस आयत पर अमल कर लिया उसका ईमान कामिल हो। और उसके बाद है वस्साबिरीना फिल बासाए वज़र्राए हीनल बास उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। देखो अगर जंग के हालात हो जाए या बीमार हो जाओ तो बीमारी में बेचैनी का मुजाहरा मत करो। और हम क्या करते हैं, अगर जरा से बीमार हुए
तो इतने शिकवे करते हैं, शिकवे के भी अंदाज अलग अलग हैं। एक एक्टिव शिकवा होता है, एक पैसिव शिकवा होता है। एक शिकवा तो बहुत जबान से धड़ाधड़ बुरा कहने लगते हैं कि हम जितनी नेकियां करते हैं शायद कोई करता ही नहीं, और अल्लाह माज़अल्लाह हम ही पर जुल्म कर रहा है, जबकि वो कह रहा है कि अल्लाह जालिम नहीं ना, उसका कौल बदलता है। और एक शिकवा होता है कि बंद लफ्जों में करते हैं, किसी बीमार को देखने गई हूँ, बंद लफ्जों में यही कहता है कि पता नहीं क्या बात का सदका भी देते हैं, उसकी बात भी ऐसा होता है। तो इलाका के बीमार हो जाओ तो सब्र का मुजाहरा, तो सब्र एक अखलाकी सिफत है, जिसमें सब्र की सलाहियत नहीं होती है वो दुनिया के किसी मसले को हल नहीं कर सकती। इनफरादी और इज्तिमाई वो बुलंद से बुलंद मकासद को, जिसमें सब्र की कैफियत होती है, और उसमें सब्र की सलाहियत मायूस हो जाता है, पकने लगता है। लिहाजा हर मुश्किल मंजिल पर सब्र करो। अल्लाह अगर तुम्हें दे रहा है तो उसका एहसान है, उसका शुक्र अदा करो, इसलिए कि अल्लाह ने आपका हाथ ऊपर रखा है, मगरूर होने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर अल्लाह ने नहीं दिया है तो भी शुक्र अदा करो, इसलिए कि अल्लाह अपनी मर्जी से देना चाहता है। लिहाजा वस्साबिरीना फिल बासाए वज़र्राए हिनल बास के हर मुकाम पर सब्र करो। उन्हीं के लिए अल्लाह कह रहा है उलाइकल लज़ीना सदक़ू उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही लोग हैं जो सच्चे हैं और यही लोग हैं जो साहिबाने तकवा हैं। सलावत पढ़ दो। बार बार इस बात का तज़किरा करूंगी कि बड़ी तवील आयत है और गालिबन आपके जहन में महफूज हो चुकी होगी कि कुछ बातों पर अमल करना है, कुछ बातों पर ईमान लाना है। लेकिन किसी भी बात को जहन नशीन कर लें कि वह इन आकबतुम वस्साबिरीन, अगर कोई भी मुकाम ऐसा है और किसी ने तुम्हारे साथ जुल्म किया है तो तुम्हें हक है, बदला ले सकते हो, लेकिन अगर बदला न लो और सब्र कर लो तो हमारी निगाह में बहुत अच्छा। यानी इस्लाम वो है और कुरान वो है कि हमें वो हिदायत दे रहा है कि अल्लाह ने हक दिया है, लेकिन हक देने के बाद जायज बदले को भी कुरान ने पसंदीदा करार नहीं। हर मुमकिन कोशिश की है कि कहीं पर भी, देखिए तबलीग के लिए भी है, तबलीग के लिए बहुत चिल्लाने की जरूरत नहीं है कि हम चिल्ला चिल्ला के अपनी बात को मनवा दें, नहीं, ये तबलीग का तरीका नहीं है। एहसन तरीके से बात को बताइए, हक को हक बताइए, नाहक को नाहक बतलाइए, बातिल को बातिल बतलाइए। ये नहीं कि जो समझ में आया कह दिया कि लोग अगर हमसे इंप्रेस हो रहे हैं तो बस हमने कहना शुरू कर दिया, नहीं। कुरान ने जायज बदले को भी करार पसंदीदा नहीं करार दिया। तबलीग के लिए भी हुक्म है, अपने रसूल से अल्लाह कह रहा है रब्बे का बिल हिकमत, मेरे हबीब इंसानियत को अपनी तरफ बुलाओ, बताओ, लेकिन याद रखो 3 तरीके हैं किसी को समझाने और बताने के, 3 तरीके हैं। अगर बताओ तो बहस के जरिए, हिकमत के जरिए, और लेकिन अल्फाज धीमे रहे, लहजा नीचा रहे और गुफ्तगू में मिठास। तो जो कुरान, जो इस्लाम लहजे को, तल्ख लहजे को नहीं पसंद करता है, पूरे वसाइल लगे हुए हैं दुनिया में फैलाने के लिए कि आज इस्लाम जो फैला है वो तलवार के जरिए फैला है। खुदा की कसम, जंगे बद्र जो इस्लाम की पहली जंग, मैं जंग मंग कभी नहीं पढ़ती हूँ, इसलिए कि जंग पढ़ना सिर्फ टाइम को, ये तो हमें मौका मिला है कि हम इस बात की वजाहत करें ताकि हम मकसद हुसैन को समझा सकें, और खुदा हमको इतनी ताकत दे। इस कुर्सी के भी कुछ फराइज होते हैं, हमें अल्लाह इतनी ताकत दे। मैं दुआ करती हूँ कि मैं राह हुसैन और वादे हुसैन और नाम हुसैन को अपनी जिंदगी को वक्त कर दिया है। परवरदिगार हमारी जिंदगी को हुसैनी जिंदगी बना दे, हमारी मौत को हुसैनी मौत बना दे। लिहाजा मैं उस बात का तस्करा कभी नहीं करती हूँ, इसलिए कि जंगों का तस्करा करके 40 मिनट 45 मिनट बात करने से हमें क्या मिलता है। ठीक है, आप पढ़िए, आप जानिए इस्लाम क्या है, लेकिन इस्लाम का जो मुख्तसर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद और मिशन यूनिवर्सल है, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम दुनिया तक पहुंचाए इमाम सैयद साजिदीन का वास्ता, जनाब ज़ैनब का वास्ता, कि हम इस मिशन आज़ादारी को समझ भी सकें और दुनिया को समझा भी सकें। तो जंग बद्र जो पहली जंग इस्लाम की थी, उसमें 313 लोग आए। 313 लोग, उससे पहले कोई जंग हुई नहीं थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 313 आए थे वो किस तलवार से मुसलमान थे? ये लोहे की तलवार नहीं थी, ये रसूल के किरदार की तलवार थी।
40 बरस रसूल ने इस्लाम को पेश नहीं किया है, कल्चर बताया है, अदा करके बताया है कि देखो इस्लाम कैसा होना चाहिए। हमें ज़बानी लफ़ाज़ी के जरिए किसी को मुतासिर करने की जरूरत नहीं, हमारा किरदार ऐसा हो कि दुनिया हमसे खुद मुतासिर। तो ये पहली जंग इस्लाम की हुई थी, 313 जो आए थे वो रसूल के किरदार से मुतासिर हुए। असलहा और तलवार तो इस्लाम में आखिरी नतीजे का नाम है। हमारे मजहब में तो इंसानियत की इतनी कद्र है कि इस बाते हमल को गुनाह कबीरा करार दिया। मैं कैसे समझाऊं इस बात को कि पेट में बच्चा आया और उसके बाद उसका तहफ़्फ़ुज़ महफूज है, अगर आप उसको पता करते हैं तो उस पर वो है कि आप उसका वो निकालिए, कफ़ारा निकालिए। यानी इसकात हमल को हमारे यहाँ गुनाह कबीरा करार दिया। इतना इंसानियत का एहतराम है कि आए तो एहतराम करो, जाए तो एहतराम करो। और ये किस्सा आज का नहीं, अज़ल से चला आया किस्सा है कि जो इंसान को समझते ही नहीं। बड़ी तवील गुफ्तगू हो जाएगी कि पहले उमर इब्न अब्दुल जब अली के सामने आया है तो रसूल अली ने 3 मतालबे किए थे कि इस्लाम ला का नहीं लाऊंगा का, कलमा पढ़ इस्लाम ला का, वापस लगा का नहीं, तीसरी बात ये कि तू पहला वार मुझ पर कर। यानी हर तरह से इंसानियत की कद्र की। किसी भी तरह इस्लाम ये नहीं चाहता है कि पहल करना, हर मुमकिन कोशिश इंसान को दी जाती है सुधरने की, लेकिन अगर उसके बाद भी इंसान नहीं मानता, उसको इतना गुरूर, इतना घमंड है। दरमियान में बात आ गई है तो तस्करा कर दूं, अल्लाह करा वल्लाहुल खालिकुल बारी अन तसव्वुल हुस्ना। तुम अपने आप को इंसान समझते हो, मगरूर समझते हो, तुम अल्लाह की बनाई हुई तस्वीरें, जीती जागती तस्वीरें। अल्लाह वो है कि जैसा चाहता है तुम्हारी माओ के पेट में तुम्हें बनाता है, जिस तरह चाहता है। मजाक उड़ाने का किसी का हक नहीं है कि हम दूसरे का मजाक उड़ाएं। जैसा चाहता है वो माओ की पेट में तुम्हारी तस्वीरें बनाता है और तुम जीती जागती तस्वीरें हो। और ऐसी तस्वीरें हो कि आप पहचानिए अल्लाह की वहदानियत को, पहचानिए कि ऐसी तस्वीरें हो कि एक बालिश का चेहरा है, आंखें हैं, नाक है, मुंह है, हाथ है, पैर है, लेकिन एक बालिश के चेहरे में इतने मुख्तलिफ इंसान बना दिए कि उसके यहाँ तक के फिंगर प्रिंट्स भी, जो ट्विंस पैदा होते हैं उन बच्चों के फिंगर प्रिंट्स भी अलग होते हैं। ये कुदरत का निजाम है। वो कह रहा है तुम अपने पर गुरूर करते हो, तुम अल्लाह की बनाई हुई तस्वीरें हो, लेकिन ये उसका कमाल है कि उसने लाखों अरबों करोड़ों तस्वीरें बना दी, एक एक से नहीं मिलती हैं, लेकिन 12 ऐसे बना दिए कि एक तस्वीर, एक तबस्सुम, एक किरदार। 5वें को जाते हुए जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने देखा तो कहा मेरा 5वां इमाम जा रहा है, और पहले को सोता हुआ देखा, कहा मेरा रसूल सो रहा है। सलावत पढ़ते ये अज़ल से चला आया किस्सा है। इंसानियत की कद्र वही नहीं करते कि जब इब्लीस से कहा था सजदा कर, वो अकड़ गया था कि मैं क्यों सजदा करूं, ये मिट्टी से बने। अल्लाह ने कहा जब अपनी रूह फूकेंगे तब सजदा करो। तो जो इंसान को सिर्फ मिट्टी का पुतला समझते हैं वो सजदा नहीं करते हैं, और जो अल्लाह की रूह समझते हैं वो सजदा करते हैं। इसलिए बला मन अस्लमा, उसने कहा कि हमने ऐसी तस्वीरें बनाई है और इंसान को इस तरह बनाया है कि कसीर मखलूकात पर इंसान को बरतरी दी, तैयब व ताहिर रिज़्क़ दिया है, लेकिन बला मन अस्लमा वजहुल्लाह, उसकी तारीफ ये है कि पूरी जिंदगी को, मेरा मुख्तसर यही है, मैसेज यही है कि पूरी जिंदगी को अल्लाह के हवाले कर दो, अल्लाह के नाम से नहीं करते। बल अस्लमा वजहुल्लाह, लेकिन एक शर्त लगाई है कलाम पाक में, 3 मुकामात पर ये शर्त है। सूरह लुक़मान में है, सूरह निसा में है, सूरह बकरा में है कि वह हुआ मोहसिन, लेकिन एहसान करते रहो। और एहसान का इतना सवाब है, एहसान कहते हैं नेकी में पहल करने। देखिए सलाम करना वाजिब नहीं है, जवाब देना वाजिब।
लेकिन सलाम करना वाजिब नहीं है और जवाब देना वाजिब है। और देखिए तारीख और हदीस की किताबों में कि मुस्तहब करने वाला पहले जन्नत में जाएगा। लिहाजा अगर ये सोचिए कि बस हम नमाज पढ़ते हैं, हम नमाज शब पढ़ते हैं और बस हमसे ज्यादा कोई बेहतर नहीं है, तो मैं समझती हूँ कि मुझे हक नहीं कहने का कि मैं कहूँ गुनहगार, लेकिन अल्लाह को पसंदी नहीं पसंद। बार बार मैं इस बात को दोहराती हूँ कि जो भी कमाल अगर आपको अल्लाह ने दिया है, अगर आप उस फैसिलिटी का मिस यूज करेंगे तो आपकी दुनिया भी गुमराह होगी और आखिरत भी गुमराह है। और दुनिया तो आखिरत की खेती, ये मुख्तसर सी जो जिंदगी हमें मिली है, जितना चाहे हम इसका अच्छा सा यूटिलाइज करें। तो बल हुआ वल अदल वल एहसान, अल्लाह ने अदल का हुक्म दिया और एहसान का हुक्म दिया है कि अदल करो और एहसान करो, नेकी में पहल करो। अब देखिए मुमकिन नहीं, जो मैंने कहा ना कि तिलावत कलाम पाक से होती, लेकिन उसकी वजाहत हमेशा जिंदा किरदारों से होती कि अल्लाह कह रहा है एहसान करो। आयत के आने से पहले अगर कोई अमल कर रहा है तो वो एहसान कर रहा है, आयत के आने के बाद अगर कोई अमल कर रहा है तो इताअत कर रहा है, और आयत के आने के बाद अगर कोई बगावत कर रहा है, नहीं मान रहा है, तो वो बगावत कर रहा है। अब देखिए कि आले मोहम्मद किस मंजिल पर फायज है कि कुरान कह रहा है यसअलूनका माज़ा, जितना दिल चाहे खर्च करो, मना नहीं किया है, हुक्म है कि जितना दिल चाहे, इसलिए रिस्क तुम्हें मिलता ही सखावत में, खूब खर्चा करो, बस हराम का ना कमाओ ना हराम में उड़ाओ। अल्लाह ने अगर तुम्हें दिया है तो ना अल्लाह से मिलाओ, ना इतना खर्च करो उसके नाम पर कि अल्लाह की मोहब्बत में खर्च करो, लेकिन खर्च करना है सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत में। अब देखिए आले मोहम्मद का किरदार आले मोहम्मद क्या है कि इन्होंने खुद नहीं खाया है। दो मरतबा ये आयत आई है कलाम पाक में, अतल माला अला हुब्बैही, अल्लाह की मोहब्बत में खर्च करो। और किसने खर्च किया है? व युतिमुन ताम अला हुब्बैही मिस्कीनों व यतीमों व असीर, अहले बैत खुद भूखे रहे और यतीमों, असीरों, मिस्कीनों को खिलाया। खर्चा करने को कहा है। देखिए इस्लाम में किसने, आयत बाद में आई है और खदीजा ने पहले इस्लाम पर एहसान किया। तो जो चीजें एहसान में दी जाती हैं वो अल्लाह चाहे अगर उसका वापस ले सकता है। मिसाल के तौर पे कि अल्लाह ने जमीन बनाई है तो उसे हक है वो जब चाहे वापस ले सकता है। बहुत बहुत मुख्तसर करके कहना चाह रही हूँ कि जनाब आदम को जन्नत में रखा और फिर किसी वजह से जन्नत से बाहर निकाल दिया। मैं ये नहीं कहती कि माजल्ला कोई खता हुई थी, इसलिए कि हजारों बरस पहले अल्लाह ने अनाउंस कर दिया था कि मैं एक नबी बनाने वाला हूँ। सजदा करना साबित कर दिया कि जो हम इमाम के ज़हूर का इंतजार कर रहे हैं, ये फरिश्तों की पैरवी कर रहे हैं। 1500 साल पहले कह दिया था कि हम एक पुतला बनाने वाले हैं, एक नबी बनाने वाले हैं, और उस पर सजदा करना। तो जिन्हें संजीदा तरीके से, जिन्हें इंतजार पर यकीन था, वो वही उन्हीं के पीर हैं जो आज तक इमाम ज़माना की ग़ैबत का इंतजार कर रहे हैं। एहसान करते रहो और एहसान का इतना सवाब है, यही इस्लाम है। लेकिन बस दुनिया वालों से इस्लाम का मुख्तसर ये है कि अल्लाह से भी राब्ता रखो और बंदों से भी राब्ता रखो। एहसान करते रहो, पहल करते रहो, इस थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना कि उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया, उन्होंने कह दिया, मुझे मजलिस में नहीं जाएंगे, आपने नहीं बुलाया तो हम नहीं बुलाएंगे। हमें बदला लेने का कोई हक ही नहीं। इसलिए मासूम फरमाते हैं कि भूलने की आदत डालो, अगर इसी तरह रहोगे तो दुनिया में तन्हा रह जाओगे। लिहाजा इस बात का ख्याल न रहे कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो किया है, हमारा अमल हमारे साथ जाएगा। ये दुनिया आखिरत की खेती है, आज जैसा आप बोएंगी वैसा कल काटेंगी। मैं तो अक्सर ये जुमला मजलिस में कह देती हूँ कि जो भी कहानी आप लिखते हैं वही बच्चे आपके पढ़ के सुना देते हैं। लिहाजा आपका प्रेजेंट बच्चों का माजी है। इस बात का बहुत ख्याल रहे कि हम अपने हर गुफ्तगू में इस बात का ख्याल रखें कि ऐसा कोई अमल ना हो कि हमारे बच्चे हम पर कहें कि भाई हमने तो अपनी माँ को ऐसा ही देखा है।
زبان کے ذریعے عمل نہیں ہوتا جتنا کردار سے عمل ہوتا ہے، کیونکہ اسلام صرف کردار سے پھیلا ہے۔ اور جتنا آپ اپنے کردار کو بلند کریں گے، آقا امام حسین علیہ السلام دین دار نہیں بلکہ دین مکمل دین، جتنا آپ اس در کے قریب ہوتے چلے جائیے گا، اللہ کا خوف آپ کے دل میں پیدا ہوتا چلا جائے گا، آپ اللہ کو سمجھتے چلے جائیے گا۔ اور جو یہ میں مثال دیتی ہوں کہ توحید کو بچانے کے لیے ہر انسان جانتا ہے، اس لیے کہ جس طرح ایک بچہ جب ماں کی گود سے کسی کی دوسرے کی گود میں آتا ہے تو ہمک کے نہیں آتا ہے، پلٹ کے ماں کو دیکھتا ہے، لیکن جب دوسرے کی گود سے ماں کی گود میں آتا ہے تو ہمک کے آتا ہے۔ بس اسی طرح توحید ہے کہ ہر انسان جب مصیبت اور پریشانی میں اور مشکلوں میں ہوتا ہے تو صرف توحید کا سہارا ہوتا ہے، اور اس توحید کو پہچاننے کے لیے، بتانے کے لیے اس در کے علاوہ کوئی در نہیں۔ یہ تو ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ جہاں پر ہمارے بچوں نے گھٹنیوں چل کے سانسیں لی ہیں، سمجھا ہے، تو ہم کیسے یہ ممکن ہے کہ آج ہم ذرا سے اس کرونا وائرس سے ڈر گئے اور مجلسوں میں نہ جائیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ اگر ہونا ہوگا تو حسین وہ ہے کہ جس کے نصیب میں جو نہیں ہے وہ دے، سوائے ایک ڈر کے کہ ملک الموت آئے تھے اور جناب سیدہ نے اجازت نہیں دی تھی، تو رسول نے کہا تھا بیٹی یہ تمہارا صرف فقط تمہارا ڈر ہے کہ یہاں پر ملک الموت بھی آتے ہیں تو اجازت لے کے آتے ہیں، لیکن آقا حسین یہ ہے کہ سب کو شفا بانٹ رہے ہیں، جس کے نصیب میں جو نہیں ہے وہ بھی ملے گا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم جب کعبہ اور بنا رہے تھے، ابراہیم اور اسماعیل کعبہ بنا رہے تھے تو دعا کرتے جا رہے تھے کہ پروردگار میں میری ذریت میں مسلمان امت چلتی رہے اور میرے گناہوں کی توبہ کر دے، میں بہت گنہگار ہوں، میرے مسلمان امت چلتی رہے میری ذریت میں۔ تو جس وقت رسول نے اعلان رسالت کیا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت مسلمان تھے، اس لیے کہ ابراہیم کی دعا ایسا تو نہیں کہ قبول نہیں ہوئی، لیکن مسلمان ہونے کا طریقہ کیا بتایا ہے، ڈیفینیشن کیا بتائی ہے قرآن نے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ بس آخری جملے اور ربط مصائب کہ کیا طریقہ بتایا ہے، قاتل الجبین۔ جب ایک باپ نے، سورہ صافات کی بہت مختصر آیت ہے کہ جب ایک باپ نے بیٹے کو قربانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے آواز دی کہ باپ بھی مسلمان اور بیٹا بھی مسلمان۔ وجہ یہ بتائیے کہ جتنا ایثار ہوگا، ایک باپ نے ایک بیٹے کو جب قربانی کے بل لٹا دیا تو آواز آئی، ندائے قدرت آئی کہ باپ بھی مسلمان بیٹا بھی مسلمان۔ وہ کیسے دنیا والے ہیں، قرآن سے کتنے دور ہیں کہ ایک ایسا تھا کہ جو 12 برس بیٹوں کو لٹاتا رہا اور ہٹاتا رہا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ بس یہ تو خوش نصیبی ہے انسان کی کہ اللہ جسے ہدایت دے وہ خوش نصیب ہے۔ وہ اعلان کر رہا وہ جس کو اللہ ہدایت کی توفیق عطا کرے اس کے دل کو اللہ سینے کو روشن کر دے، جس کے دل میں جتنی خوف خدا ہے، جتنی محبت ہے، اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جس کی ہدایت چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جس کی ہدایت نہیں چاہتے ہیں، جس کے گمراہی چاہتے ہیں، میں یہاں پہ وضاحت کر دوں اس لیے کہ بچے اکثر الجھ جاتے ہیں کہ معاذ اللہ کسی رسول کا پابندی نہیں کہ جس کی ہدایت جس کو چاہے ہدایت دے دی، جس کو چاہے گمراہ کر دیا، لیکن 95% اپنی تقدیر کا خود انسان ذمہ دار ہے۔ اللہ کہہ رہا جس کی ہدایت چاہتے ہیں اس کے لیے اسلام کے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جس کی گمراہی چاہتے ہیں وہ اپنے کو ایسا محسوس کرتا ہوا یسد السماء، پوری دنیا میں وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ وہ آسمان پر اڑ رہا ہے۔ بظاہر جو گمراہ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جتنی ہم کو اللہ نے جتنے بھی گناہ کرتے ہیں، جتنے دھڑا دھڑ گناہ کرتے ہیں، لیکن ہم کو اللہ جو ہے چھوڑے ہوئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ ہم آسمان میں اڑ رہے ہیں، لیکن ہم نے اس کے سینے کو تنگ اور تاریک کر دیا ہے۔ بہت غور و فکر کی ضرورت ہے اس آیت پر کہ ہم نے اس کے سینے کو تنگ اور تاریک کر دیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آسمانوں میں اڑنے سے اور نفس کے تنگ اور تاریک ہونے کی وجہ کیا، لیکن ایک ایک لفظ قرآن کا ایسا ہے کہ جتنا آپ مطالعہ کریے آپ کی زندگی سنورتی چلی جائے گی۔
کہ نفس کے تنگ اور تاریک ہونے کی وجہ قرآن بتا رہا کہ جتنا جتنا انسان آسمان کی طرف ہوتا ہے اس کی آکسیجن ختم ہوتی ہے. آکسیجن کی تھیوری 1954 کی ہے اور قرآن 1500 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ آسمان میں اڑنے سے وہ نفس کا تنگ ہو جاتا ہے. صلوات پڑھتے محمد بس میں اپنی گفتگو کو ختم کرتی ہوں کہتے ہوئے کہ مقصد حسین اگر آپ نے نہیں سمجھا ہے، مولا فرماتے ہیں اگر وہ کوئی انسان جان بھی دے لے لیکن اگر اس نے مقصد حسین اور مشن حسین نہیں سمجھا ہے تو اس کا. اور امام حسین علیہ السلام نے اس مقصد کو، اس قربانی کو ایسی قربانی دی ہے کہ خدا کی قسم صرف حسین نے قربانی دی. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہوں یا آقا، روز عاشورہ مر جانا آسان تھا لیکن زندہ رہنا بہت مشکل. لیکن اس گھرانے کا کم سن ذرہ بے بس ذرہ بھی مصیبتیں جھیلتا رہا ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ بابا ہم سے مصیبتیں اٹھائیں. ایسی مصیبتیں اٹھائی ہیں کہ شہزادی فاطمہ زہرا کو نہ جانے ان آنسوؤں سے کتنی محبت ہے کہ ادھر آپ نے فرش عزا بچھائی اور شہزادی اپنا رومال لے کے چلی. ہماری حیثیت کیا ہے کہ حسین کے عزاداروں کو کچھ دے سکتے، لیکن میں اپنے نصیب پر فخر ضرور کرتی ہوں. ہم گنہگار کے آنسو کہاں رومال سید. نہ جانے کتنی محبت ہے اس ماں کو. 8 دن کی وہ بستی تھی کہ تاریخوں میں ہے کہ 2000 سال کی بستیاں اجڑ گئی، مٹ گئی، لیکن نام حسین 2 محرم کو حسین نے کربلا آباد کی اور 10 محرم کو اجڑ گیا وہ قافلہ، اجڑ گیا وہ کارواں، اجڑ گیا، لیکن آج تک مومنین کے دلوں میں زندہ ہے. خدا سلامت رکھے حسین کے چاہنے والوں، حسین کے فرش عزا بنانے والوں کو، حسین کے رونے والوں کو پروردگار انہیں کوئی غم نہ دینا جو حسین کا غم. اے آقا، اس بچی نے جو مصیبتیں اٹھائی، 4 برس کی بچی زینب قافلے کی نگرانی کر رہی ہے، سید سجاد شکر کا سجدہ ادا کر رہے ہیں. ایک قافلہ آیا، شمر ملعون ایک قافلہ لے کر آیا. اے زینب تم ہماری خیر میں، ہم جس طرح چاہے تمہیں لے جا سکتے ہیں. زینب تڑپ گئی ہے، شمر ہم نامحرم کے ساتھ نہیں جا سکتے، ہماری کچھ شرطیں ہیں، لوٹی ہوئی چادروں کو دے دے، گمنام راستے سے لے چل، کہا کچھ منظور نہیں ہے، ہم سوار کریں گے. زینب نے کہا ہم فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے جس کی ماں کا جنازہ پردہ شب میں اٹھا ہے، ہم رسول کی نوازی، ہمیں نامحرم ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہم خود سے سوار ہو جائیں گے. زینب نے ایک ایک بیوی کو سوار کیا، اس کے بعد تبگاہ کی طرف گئی. اے عباس، زینب تو بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا. اے بھیا علی اکبر، میں نے 18 برس تمہیں پالا تھا یہ سوچ کے. آیا زینب آج کتنی مجبور ہے. بس بیویوں یہ قافلہ، اس بچی کو اگر یہ نہ پڑھا جاتا، میں ہمیشہ اس روایت کو ضرور پڑھتی ہوں، میرا دل بڑا بے چین ہوتا ہے. یہ سنگ دل اس لیے آئے تھے کہ چونکہ حسین سکینہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور محبت کی تعریف یہ ہے کہ آپ کسی سے اگر محبت کرتے ہو اگر اس کے چاہنے والوں کو بھی اذیت دی جائے بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ اس لیے آئے تھے چونکہ حسین سکینہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، لہذا سکینہ کو تنہا اونٹ پر بٹھائیں گے. تصور کیجئے 4 برس کی بچی اونٹ کی ننگے پول، تاریخوں میں ہے کہ 13 محرم کا دن لٹا ہوا قافلہ کوفے کے بازار میں آیا ہے. ایک ہی منزل پر جب سکینہ کو اتارا گیا ہے، اونٹ کی پوری پشت خون سے رنگین تھی. زینب کس کے حوالے، بچی کو روکے، کیسے منع کرے. خدا سلامت رکھے بنام حسین پانی پلانے والوں کو. میرے دل سے دعا نکلتی ہے پروردگار حسین کے نام پر جو ایک لقمہ بھی خرچ کرتے ہیں، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. اس لیے کہ جن کے ٹھوکروں میں پانی تھا وہ بچی پیاس سے جا بلغ ہے. یہ قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے دمشق بھیجا جا رہا ہے. یزید ملعون کے پاس راہ ملتی ہے، قافلہ روکا جاتا ہے.
यजीद मलऊन शिमर मलऊन अपनों को खाना और पानी से सैराब कर रहा है। वहीं पर ये कमसिन बच्ची देख रही है, लेकिन ज़ैनब किसके सहारे रोके? बच्ची ने ज़ैनब का चेहरा देखा है, खूबी अम्मा प्यास का शिकवा नहीं किया है, सिर्फ ज़ैनब की तरफ देखा है। ज़ैनब किसके सहारे रोके? खूबी अम्मा अगर तुम इजाजत दे दो तो मैं शिमर से पानी मांग लूं। ये वीडियो जो भी है वो सिर्फ हुज्जत तमाम करने के लिए था। सकीना तसव्वुर में जरा नन्हे नन्हे कदम और 4 बरस की बच्ची लगती है, नन्हे नन्हे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ी। शिव तेरे खजाने में कमी नहीं आ जाएगी अगर एक घूंट पानी दे दे। शिव ने सुना और खामोश रहा। बीबी हुसैन ने भी हुज्जत तमाम करने के लिए पानी मांगा था और शिमर ने कहा था, ए हुसैन सारी दुनिया पानी पानी हो जाए, अब तुम्हें एक कतरा पानी नहीं देंगे। मैं कहती हूँ जो 18 बरस के करियल जवान बेटे का लाशा उठा चुका हो, उसे पानी की तमन्ना नहीं थी। हुसैन तो सिर्फ हुज्जत तमाम कर रहे थे। यही जवाब अगर शिव सकीना को दे देता, मैं सब्र कर लेती। वो खामोश रहा। जब सबको पानी पिला लिया, एक मर्तबा रुख मोड़ दिया मशका और सारा पानी जमीन में बहा दिया। अब बच्ची तड़पने लगी। ज़ैनब आगे बढ़ी। ए बीबी तेरा बाप जिंदा नहीं, तेरा चचा अब जिंदा नहीं, तेरा भाई अली अकबर अब जिंदा नहीं, इन दरिंदों से मत मांग पानी। बीबी अब तक जितने भी मसाइल पढ़े हैं, जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, सबको पढ़ के ये कहना पड़ता है कि आले मोहम्मद शहादत के बाद असीर बना के इतना सताए गए थे। बस एक रवायत सुन लीजिए। जब अब हुसैन आखिरी रुखसत के लिए आए हैं और ज़ैनब से कहा, बहन ज़ैनब तुम मेरी बच्चों की जिम्मेदार हो, मेरे कारवां तुम हो, खुसूसन सकीना की जिम्मेदार हो। बस यही काफिला चलता हुआ एक मर्तबा रुक गया है। शिब्र मलऊन सैयद सज्जाद के करीब पहुंचा। सैयद सज्जाद अपने बाबा से कहो कि आगे बढ़े, वरना तुमको ऐसी अजियत पहुंचाऊंगा। दासियाना हवा में लहराया। बीवियों जरा तसव्वुर कीजिए, इसलिए कि इमाम हुसैन पर रोना तसव्वुर शर्त है, वरना जरूरत नहीं है मसाइब पढ़ने की। वो माए बड़ी पाकीज़ा नफ्स है जिसके लिए मासूम ने कहा है कि जब तुम हमारी मोहब्बत का एहसास करो तो अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करो। बहुत पाकीज़ा नफ्स माए हैं कि जिनके दिलों में, जिनके बच्चों में अहले बैत की मोहब्बत है। जरा तसव्वुर कीजिए वो सैयद सज्जाद जो शाम गरीबा के मसाइब पर जिसने शुक्र का सजदा किया है, ऐसी ही तो मुसीबत थी कि सैयद सज्जाद ने कहा, ए बाबा आगे बढ़िए, अब मेरी पुष्प में ताज़ियाना खाने की हिम्मत नहीं है। ज़ैनब आगे बढ़ी, देखा उस मुकाम पर आई जहाँ से काफिला आया था। एक मुकाम पर देखती है, एक बच्ची है, एक बीबी है जो बोलने लिए है। खुदा जब ये रवायत पढ़ती हूँ तो एहसास होता है क्या गुजरी थी अकबर हुसैनी पर। ज़ैनब कहती है, ए बीबी इस बच्ची पर किसी ने नहीं तरासाया, आप कौन है जो बोलने में? बीवियों जनाब सैयदा ने चेहरे से नकाब उल्टी। ज़ैनब ने पहचाना, मैं तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा हूँ। मुद्दत के बाद ज़ैनब ने जो माँ की आवाज सुनी है तड़प गई। अम्मा आबाई को जब भैया मार डाला गया, अम्मा आबाई को जब ज़ैनब के सर से चादर छीन गई, बस मैं मजलिस यहीं पर तमाम कर देती। चंद मिनट के मसाइल और सुन लीजिए कि इस बच्ची को बड़ी तमन्ना थी वतन जाने की। एक मर्तबा ऐसा अंधेरा है कैद खाने में, रोते रोते किसी तरह सकीना को नींद नहीं आ रही है। जब जिंदाने शाम खुला है, यजीद मलऊन को तरस आया है और हुसैन का सर ले जाए। एक मुद्दत के बाद जो बेटी ने बाप का सर देखा, चेहरे पे चेहरा रख दिया। ए बाबा आए हो। ए बाबा जब से तुम गए हो सकीना सोई नहीं है। ए बाबा लिल्लाह वादा करो सकीना पानी का शिकवा नहीं करेगी। ये कहते कहते सकीना खामोश हो गई।
बीवियों ने कहा है रबाब गोद में ले लो बच्ची को। अब जो रबाब ने बात फैलाई है तो खुदा की कसम आपकी ममता ठंडी रहे, किसी माँ को ये मंजर न दिखाए। अरे रबाब दुनिया की वो माँ है, अगर किसी का कोई मर जाता है तो माँ को खुसूसन हटा दिया जाता है, लेकिन रबाब वो माँ है टुकड़े अपने कर दिए इस्लाम पर निसार। फिदिया है लाजवाल खवातीन करबला। अरे रबाब वो माँ है जिसने अपने दोनों बच्चों की कब अली असगर को सामने कब्र को कुत्ते देखा, सकीना की कब्र को एतमाने शाम में कुत्ते देखा। आए बीबी आइए, इस मजलिस में तशरीफ लाइए, हम सकीना का ताबूत उठाते हैं। बड़ी तमन्ना थी सारी जिंदगी रवा, जले हुए झूले की लकड़ियां हमने पास रखी थी, गोशवारे थे। ए बीबी आइए, आज 1400 साल के बाद भी जब हमारी नबी जबान से जिक्र मसाइल होता है तो दिल तड़प जाता है, दिल बेचैन हो जाता है। जरा उस बीवी से पूछिए, उस ममता से पूछिए जो सारी जिंदगी जले हुए झूले की लकड़ियां लिए रही, गोशवारे लिए रही। ए बीबी इस मजलिस में तशरीफ लाइए, ये मोमिना आपकी बच्ची को पुरसा देने के लिए आई है। बारे लाल की आवाज पर रहम करना, बारे लाल सकीना और अली असगर के सत्ते में इनकी गोदियां आबाद रहे, बारे लाल इनके सरों पर वारिसों का साया रहे। अल्लाह